Hey guys, welcome to our YouTube channel Brother Science Hub. So I am Aryan Sharma and I read in class 8. So I am here to tell you that CBSE course math, CBSE course math of 8th class. Okay, I will teach you the CBSE course of math of 8th class. Okay, I am also in 8th class. So first of all, what I am teaching you that is rational number. Rational number. So what is rational number? First of all, we have to learn the definition of rational number because it is very important to learn the rational number. So definition is any number that can be expressed in the form P upon Q and P and Q. What are P and Q? First of all, you tell me what are P and Q. I am waiting for 5 seconds. You comment right now and tell me what are P and Q in this equation. What are P and Q? Tell me first in 5 seconds. So, P and Q are integers. What are P and Q? Integers. P and Q are integers. So, Q is not equal with 0. Q is not equal with 0. So, they are rational numbers. What are they? Rational numbers. So, I am repeating this, okay, and you repeat after me. First I am repeat, then you repeat after me, okay. Any number, then speak after me. Any number that can be expressed, any number that can be expressed in the form P upon Q, in the form P upon Q, and P and Q are integers. See, what are P and Q? Integers. So, P is not equal with 0. P is not equal with 0. So, they are rational numbers. Hope that you understand the definition of rational number. So, please write it in your copy and I am underlining. So, please write this in your copy. That makes your teaching style very easy. Okay. Now we have done with the rational numbers. Now it's time for the examples of rational numbers. Examples of rational numbers. For example, 5 upon 7. So we have to add this, okay? Plus 5 upon 7, comma, minus 3 upon 7. Okay? So, this is the question. Question number 1. And this is the example first. So, what we have to do in this? 5 upon 7. We have to add this. So, first of all, when the plus sign is there, we cannot write minus without bracket because this equation is wrong. This is wrong because both signs cannot come together. So what we have to do for taking this inside, what we have to do to take this inside. So we have to take minus 3 in the bracket upon 7. So this is the method. I hope that all of you, or not more, but
some people learn how to do this equation. Okay, now 5 upon 7 and minus 3 upon 7. So plus or minus, what it become? Plus and minus, plus minus minus. So plus minus minus, so 5 upon 7 minus 3 upon 7. 5 minus 3 is 2. So 2 upon 7. This is the formula of this answer. अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया गलती से भी, ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जब हम दोनों साइड को एक साथ ला सकते हैं तो ये किसी मैथ का फॉर्मूला ही नहीं है। मैथ का फॉर्मूला में जब भी हम प्लस और माइनस एक साथ या फिर दोनों साइन यानी कि माइनस और माइनस दोनों साइन तो ब्रैकेट ही लगाते हैं। बिना ब्रैकेट के हम कुछ भी नहीं कर पाते, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नाउ ये इसका आंसर हमने आ चुका है, तो ये आंसर इसका हो गया। तो होप आपको याद आ गया होगा। और एक बार मैं प्लस माइनस वाला आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी मत करिएगा, ठीक है। तो आप एक बार ये कॉपी कर लीजिए। तो अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, मैं आपको प्लस माइनस का फॉर्मूला बताऊंगा, यानी कि प्लस माइनस it makes minus, minus minus it makes plus, plus plus it makes plus, and minus plus it makes minus. So this is the formula, 4 formulas that you have to keep it in your mind. अगर ये आप भूल गए तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिए। मैंने ये फॉर्मूला याद करने में मैंने भी बहुत दिन लगाए थे, क्योंकि ये फॉर्मूला वैसे तो इजी है लेकिन इनको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, और खासकर कि तो सॉल्यूशन के साथ। तो एक बार आप इसको कॉपी में कर लीजिए, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि प्लस माइनस इट्स मेक माइनस, माइनस माइनस मेक प्लस, माइनस प्लस मेक प्लस, प्लस माइनस प्लस मींस माइनस। सो ये आपको 6th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, 6th या 7th क्लास में। और अगर कोई ये चीज भूल गया हो तो एक बार वापस लिख दीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लॉकडाउन में हम स्कूल भी नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हम आपके लिए घर पे ही ट्यूशन क्लासेस लेके आए हैं इसकी। तो मैंने ये बता दिया है, तो लॉकडाउन के अंदर आप सुरक्षित रहिए और अपने घरों के अंदर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, यानी कि एक्सरसाइजेस की तरफ। कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया होगा आपको सबको समझ में आ चुका होगा। तो एक्सरसाइज 1.1, तो आई फॉरगॉट वन थिंग, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि आई रीड इन सुबोध पब्लिक स्कूल रामबाग जयपुर। सो अगर आप में से कोई बच्चा सुबोध में पढ़ता है तो एक्सरसाइज 1 यानी कि रेशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 आएगा, ओके। और बाकी के बच्चों यानी कि सेंट सोल्जर और जितने भी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका चैप्टर नंबर कोई सा भी आ जाए, लेकिन रेशनल नंबर चैप्टर 8 में आपका जरूर आएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ऐड। जब मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा दिया है ऐड का, तो अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। ये 4/7 एंड 5/7 हमें इनको ऐड करना है। तो अब आपको मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी ऐड बताया था, वो आपको आ गया होगा। तो चलिए जिन को भी आ गया वो नीचे कमेंट में यस और नो में जवाब दीजिए। तो अब मैं इनको कर देता हूँ सॉल्व, को मिटा देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। 4/7 and 5/7 we have to add this. So how we can add this? 4/7, or guys this is very easy method to learn maths because ये आपका चैप्टर जो फ्रैक्शंस है या फिर उसमें भी आ चुका है कई बार। सो हम आपको
ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का वो क्लियर हो जाए। तो चलो अब हम 4/7 और 5/7 को प्लस करते हैं। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया है कि प्लस करते समय अगर यहाँ पर कोई -3 डिजिट हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन अभी हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस करके प्लस ही बन जाता है, जिससे हमें इनको ना तो कोई माइनस ना प्लस की जरूरत पड़ेगी। तब हम इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। 5 + 4 इट्स मेक 9, तो 9/7 इज आंसर। सो दिस इज वेरी इजी मेथड गाइस, ये आपको जरूर याद होगा, मेरे को पूरा पता है क्योंकि ये जो मेथड है और ये छोटे बच्चों यानी कि 5th या 6th क्लास के बच्चों को अगर नहीं आता हो तो वो भी ये याद कर सकते हैं। तो ये आप अगर लिखना चाहते हैं, वैसे तो ये हार्ड नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपको कोई और मैं भी मिटान रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम चल रहा है। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में बेसिकली जैसे कि हमने बोला था पहले जैसे चैप्टर, यानी कि हम जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है 5/11 प्लस 4 3/9। तो ये है हमारा एक मतलब ये हमारी एक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करनी है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देंगे जैसे ये है, फिर हम इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 × 4। सो 9 × 4 कितना होता है, सो 36, 9 4 था 36। तो 36 को हम 3 से प्लस करेंगे, तो 36 को हम 3 से प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 38। तो 38/9। तो गाइस ये है हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है। अब प्लस की बारी आती है। तो देखिए गाइस इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। कई सारे बच्चों ने एलसीएम लेने में बहुत गलती करी है और बहुत गलती करते भी हैं। तो एलसीएम बेसिकली गाइस ऐसे लेते हैं 11 और 9 का एलसीएम। तो 11 किसी भी टेबल में भी नहीं आता है, तो 11 को हम 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 11 बन जाए 11 और 9 को यहाँ पर रख देंगे। तो अब 9 किससे डिवाइड होता है, जो सबसे छोटा हो 9 से, 9 होता है 3 से। तो 3 यहाँ पर 1 एज इट इज लिख देंगे, 3 3 9। तो अब 3 बचा है, तो 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है 1। ओके, तो ये अब हमने कर दिया है। तो 11 3 33 और 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। तो अब यहाँ पर 99 आंसर आ चुका है, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो 99 आंसर को हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर की साइड, यानी कि यहाँ पर। ओके, तो अब 11 की टेबल में 99 कितनी बार आता है मुझे आप ये बताइए। 11 के टेबल में 99 9 बार आता है, 5 × 9, क्योंकि 11 के टेबल में 9 बार आता है 99। तो अब हम इसको करेंगे प्लस। 9 की टेबल में 99 कितनी बार आता है 11 की टेबल में। तो अब हम 9 की टेबल में 11, तो 38 × 11, ठीक है। तो अब हमने ये कर दिया है। तो अब इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, ओके। तो प्लस 11 38, तो हम इसको यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 8 8 1 3 तो गाइस इसका आंसर आया है 418/99, ठीक है गाइस। तो अब हमारा आंसर ये आया है। तो अब हम ये नीचे डिनोमिनेटर हमारा एक आ चुका है,
तो अब हम इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो 418 प्लस 45 हमारा कितना होता है? 463/99 हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो मैं एक बार आपको वापस रिपीट करता हूं कि 5/11 प्लस 38/9। तो अब इसको कैसे करेंगे? हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और फिर बाद में प्लस कर दिया। तो अब हम 5/11 और 38/9 इन दोनों का क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मैंने यहां पर आपको करके बताया था। तो गाइस अब हमने एलसीएम लेना सीख लिया है कि अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया था। तो अब मैंने उस एलसीएम को मैंने आपको करके भी यहाँ पर बताया था। मैंने हो सकता है ये वापस रिपीट कर दिया हो, तो आप वापस सुन लीजिए कि मैंने यहाँ पर उसको लिखा था। और अगर आपने एलसीएम नहीं देखा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया दोनों का 99। तो 99 एलसीएम में अब हमने इन दोनों को 11 की टेबल में 99 9 बार आता है, तो हमने 5 × 9 कर दिया है। तो अब 9 की टेबल में 99 11 बार आता है, तो 38 × ये कर दिया है हमने। बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 45 आंसर आया। इसको करा तो 418 आंसर आया अपॉन 99। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 463/99 हमारा ये आंसर है गाइस। तो आज हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स किए और लास्ट के अंदर हमने ये सिंपलीफाई सीखा। तो गाइस अब हमने यहाँ पर हमारा चैप्टर है जो एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप सुबोध स्कूल में हैं तो आप इन दोनों एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, और अगर दूसरे स्कूल में भी है तो जितना मैंने पढ़ाया है तो आप दूसरी स्कूल में जितना मैंने पढ़ाया है तो आप उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाएंगे। और अगर आप हमें ज्यादा लाइक देंगे तो हम आपके लिए डिजिटल क्लासेस भी लेके आएंगे। तो मैथ के अंदर बस आज इतना ही। हम बाकी का जब भी हम वीडियो डालेंगे मैथ के अंदर तीसरे से लेके और 5 या 6 तक की एक्सरसाइज हम कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।